Myself Kedar Badeka, and today I am taking the lecture of Operation Research. This is the lecture number this is the lecture number 16th of our series of the lectures, right? So, in the previous series of the lecture, we had tried to discuss about the basic assignment problems, right? And in the previous sections, we solve the minimization assignments problem. Then in the previous lecture, we also discuss about the unbalanced assignment problems, or A, which is also called as a non-square matrix assignment problem. So basically now you are aware about how to solve the what is the basic procedure of the to solve the assignment problem. So if you are getting any assignment problem, so this is the first duty. You have to check the problem which is in the square matrix or not, right? Then you have to focus, or you have to start the solution procedure with the row converting methods, right? First you start with the row conversions. The second step, which is the column conversions, right? Then in the column conversion you try to assign the different zero in the acute matrix, right? If you are getting the zero which is allocated in the each zero, which is 1 0 which is allocated in the one row, and 1 0 which is allocated in the every column, so that is the condition. You have a assign the zero in the manner of that each row and each column is must have a 1 0, right? This is the basic conditions for solving the assignment problem. If you we are not allowing the conditions that are not allowing is that if you are assigning more than 1 0 in each row and each column, that is the uh, non-based method, right? We cannot solve the problem is like that manners. So this is the basic problem. If you are not getting the zero in the column converting convergence matrix, now at the at the end of the allocations, you have to start the crossing the lines. You have to cross the line which is covering the maximum zero, right? And then you start the iterations. Iteration 1, if you are getting the solutions in the iterations 1, that is good. If you are not getting the solutions in the iterations 1, you have to move forward for the iterations 2, and you have to continue till this process until you are not getting the zero assignable zero in 1 0 in each row and each column, right? So this is the basic procedure of the solving the assignment problem. So today we try to discuss about the another new variable of the assignment problem, which is the maximization assignment problem. In maximization assignments problem, what the new things are coming, right? So we try to move focus on the assignment problem. This maximization assignment problem, which is also solved with the basic methods of the Hungarian method, right? So sometimes the assignment problem is made deal with the ऑब्जेक्टिव फंक्शंस ऑफ मैक्सिमाइजेशंस. कभी कभी ऐसी चीज़ होती है कि जो आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम है विच इज़ डील विद द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस ऑफ द मैक्सिमाइजेशंस, वो खुद जो है वो एक डील की तरह से जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस जो आपका रहता है असाइनमेंट प्रॉब्लम का, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम? एनीवन कैन गेस, राइट? द बेसिक ऑब्जेक्टिव फंक्शंस ऑफ योर असाइनमेंट प्रॉब्लम इज we have to minimize the assigning cost, right? We have to minimize the assigning cost. और ये जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शंस रहता है ना, वो जो मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है उसके साथ जो है वो आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है वो डील करता रहता है. एंड इन सच मैक्सिमाइजेशंस प्रॉब्लम इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व बाय द हंगेरियन मेथड. इस तरीके के जो आपके असाइनमेंट्स प्रॉब्लम है जो है वो हंगेरियन मेथड जो है उससे सॉल्व किए जा सकते हैं. देन इट शुड बी इन्वर्टेड, और देन इट शुड बी कन्वर्टेड टू द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बाय द फॉलोइंग वेज. इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको
मैक्सिमाइजेशंस वाले जो प्रॉब्लम है उसको नॉर्मल करने के लिए, राइट, बेसिक में कन्वर्ट करने के लिए आपको मिनिमाइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। अभी आपने जो, अगर सपोज मैं आपको बताऊं कि अगर आपके जो आप ट्रांसपोर्टेशन, मैक्सिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के साथ जो 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 भी स्टूडेंट्स अवेयर होंगे, राइट, वो इस चीज़ को जो है वो काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। सो ये दो तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग द मैट्रिक्स एलिमेंट बाय 1। आप इसको -1 जो है उससे जितने भी सारे मैट्रिक्स है उस एलिमेंट से आप उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। और द सेकेंड मेथड विच इज़ बाय सब्सट्रैक्टिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स फ्रॉम द ऑल द एलिमेंट। यानी हम जो कोशिश करेंगे ना, ये इसी तरीके से, जो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, आप मैट्रिक्स में से सबसे बड़ा जो है वो नंबर फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। जैसे ही आप सबसे बड़ा जो नंबर है वो फाइंड आउट कर लेंगे, उस नंबर में से बाकी के सारे जो मैट्रिक्स के नंबर है वो आपको माइनस करके एक नया मैट्रिक्स आपको फॉर्म करना पड़ेगा। फिर वो जो मैट्रिक्स नया बनेगा विच इज़ द मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स, राइट। अब मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स को आप जो है वो रो वाइज या कॉलम वाइज में कन्वर्ट करके फिर आगे की प्रोसीजर जो हम पहले जिस तरह से उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे उसी तरह से हम लोग फॉलो उसको कर सकते हैं। इन द सेकेंड मेथड विच इज़ ईजियर एज कम्पेयर टू द फर्स्ट मेथड, राइट। ये लोग भी वही चीज़ बता रहे हैं कि जो आपका सेकेंड मेथड है वो कंपेरेटिवली काफ़ी ईजी मेथड है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। सो मोस्ट ऑफ द टाइम द सेकेंड मेथड इज़ यूज्ड इन दी प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल्स। सो इस तरीके से जो मैक्सिमम जो है वो सेकेंड मेथड है वो ज़्यादा तौर पे जो है वो प्रीफर की जाती है। सो हम लोग जो एक कोशिश कर रहे हैं कि एक एग्जांपल को मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करवा रहा हूँ, यानी आप देखिए कि इस चीज़ में क्या चीज़ हो रही है, पूरा एग्जांपल जो है वो कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सो एक आपको प्रॉब्लम दिया गया है, द कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम हैज़ टू अलॉट ए 5 मिडल बैटिंग पोजिशंस। उसको 5 जो है वो मिडल बैटिंग ऑडिशंस जो है उसको पोजिशन करना है टू दी 5 बैट्समैन, राइट। 5 बैट्समैन को 5 पोजीशन जो है वो अलॉट करनी है। किसको आप पहले नंबर पे भेजेंगे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे। एक कैप्टन के पास ये जिम्मेदारी है, राइट। द एवरेज रन विच इज स्कोर्ड बाय द ईच बैट्समैन एट 3 पोजिशंस आर एज फॉलो। अब इस पोजीशन के ऊपर ये जो पांचों बैट्समैन है ना, इस पांचों बैट्समैन के जो है वो हमारे पास प्रीवियस डेटा है। उस प्रीवियस डेटा में किस बैट्समैन ने किस नंबर पे जो सबसे ज़्यादा स्कोर किया है वो स्कोर के हमारे पास डेटा है। उस हिसाब से जो है उसको आप असाइन कर सकते हैं। उस हिसाब से जो बैटिंग पोजीशन है वो आप उसको अलॉट कर सकते हैं। फाइंड आउट द असाइनमेंट्स ऑफ द बैट्समैन टू द पोजीशन विच वुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स, राइट। उस हिसाब से आपको असाइन करने हैं। तो यहाँ पे आपके पास मैक्सिमाइजेशंस वाला एग्जांपल है, तो आप मैक्सिमाइजेशंस नंबर ऑफ रन, यानी आपको ऐसा कुछ बोला नहीं जाता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको जो भी क्वेश्चंस दिया गया ना, उस क्वेश्चंस में से आपको उस चीज़ को ढूंढ निकालना है। यानी आप अभी तक जितने भी आपने पहले एग्जाम्पल, एटलीस्ट मैंने आपको 7 या 8 एग्जाम्पल जो है वो मिनिमाइजेशन के और अनबैलेंस के एग्जाम्पल मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया है, राइट। हमने गिने हैं, साथ में मैंने आपको सॉल्व करके बताने की कोशिश की है। तो वहाँ पे किसी भी एग्जाम्पल की आप उस जो गिवन डेटा को पढ़ोगे ना, तो किसी भी गिवन डेटा के अंदर जो है वो मैक्सिमाइजेशन वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ मैंने एक मैक्सिमम जो है उसके नीचे एक ब्लू कलर का अंडरलाइन किया हुआ है। वो मैक्सिमम जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो ये प्रॉब्लम है ना वो मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट का प्रॉब्लम है, और उस हिसाब से आपको इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो ये जो आपके पास गिवन टेबल है, जो गिवन डेटा का टेबल है, उसमें से आपको सबसे पहले ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि ये सॉरी, ये जो गिवन डेटा वाला टेबल है ना, उसमें सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा नंबर है। तो आप रो वाइज या फिर कॉलम वाइज देख सकते हो इसको। तो मैं जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि कॉलम वाइज में एक बार देख लूँ। तो जैसे मैं कॉलम वाइज ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई थिंक जो है मुझे सबसे बड़ा जो नंबर अभी तक जो दिख रहा है दैट इज़ द 60, राइट। वो दो जगह पे मुझे दिख रहा है। एक सेकेंड कॉलम के
लास्ट वाले रो के अंदर, राइट, सेकेंड कॉलम फिफ्थ नंबर ऑफ मैट्रिक्स, फिफ्थ नंबर ऑफ मैट्रिक्स सेल, राइट। और दूसरी जगह पे मुझे दिख रहा है फोर्थ कॉलम के अंदर थर्ड रो के अंदर, फोर्थ कॉलम थर्ड रो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे 60 नंबर मुझे दिख रहा है। सो आई थिंक वो मैक्सिमम नंबर मुझे फाइंड आउट हो चुका है। अब यानी मैंने मेथड जो है वो 2 नंबर का मेथड जो है मैंने सिलेक्ट किया है। अब उसमें से आपको जैसे मैक्सिमम नंबर मिल गया मैट्रिक्स का, अब आपको एक न्यू मैट्रिक्स जो है, ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, उसको आपको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, राइट। अब आप जैसे ही देखोगे कि जो मैक्सिमाइजेशन वाला मेरे पास मैट्रिक्स था, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स। अब मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करें, तो आपके पास जैसे सबसे बड़ा मैट्रिक्स मिल गया, तो सबसे बड़े मैट्रिक्स में से आपको, मैट्रिक्स में सबसे बड़ा जो नंबर मिल गया आपको मैट्रिक्स में से, वो सबसे बड़े नंबर में से बाकी के सारे जो नंबर है वो आपको सब्सट्रैक्ट करने, माइनस करने। आप देखिए तो मैं स्टार्ट करना हूँ फर्स्ट पी से, पी वाला जो मेरा रो है उसको मुझे 60 में से माइनस करना है, या से यानी 60 में से 40 चले जाएंगे तो 20, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद मेरा बचेगा 50 और 35, फिर उसके बाद 10। तो ये मेरा पहला जो है वो रो क्रिएट पूरा जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब इस तरीके से मेरा दूसरा रो जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से तीसरा, चौथा, जहाँ पे 60 है तो 60 में से 60 माइनस हो जाएंगे तो 0 बन जाएगी। यानी अब आपके पास जो ये मैट्रिक्स बन के आ चुका है, दैट इज द मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स, राइट। ये आपने कहाँ तक का प्रोसीजर कर लिया, आपने जो चीज़ की है कि आपके पास जो प्रॉब्लम था वो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम था, आपने मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम को कन्वर्ट करके मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में आपने कन्वर्ट कर लिया है। अब आपको जो पहले प्रोसीजर की थी ना, वही प्रोसीजर है वो आपको अब फॉलो करनी है, राइट। अब आप क्या चीज़ करोगे, अब आपको वही चीज़ जो पहले हम लोग मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में सॉल्व किया करते थे, वही चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे आपके पास, मेरे पास जो अभी सॉल्यूशन, अभी आपके पास मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, मैं आपको प्रीवियस मैट्रिक्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट, जो हमने मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। यहाँ पे आपको देखिए, अब जैसे ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया तो दो रो है ना हमारे पास, वो 2 रो के अंदर हमें 0 दिख रहा है, एक R नंबर का रो, एक T नंबर का रो, तो बाकी 3 रो के अंदर अभी भी 0 नहीं है। तो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट दी मैट्रिक्स कन्वर्जन्स विद दी रो कन्वर्जन्स मेथड। अब आपको जो 3 रो है यानी P, Q and S, उसमें से रो के अंदर सबसे बड़ा वेरिएबल आपको फाइंड आउट करना है, विच इज दी आई थिंक 35। तो जैसे ही 35 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, राइट। सो यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है, ऐसा कुछ मुझे इंडिकेशंस आ रहा है कि अगर आप देखिए, सिंस द मैट्रिक्स विच इज़ इन द स्क्वायर फॉर्म, नाउ मूविंग टूवर्ड द सेकेंड स्टेप विच इज़ द फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू इन ईच रो एंड सब्सट्रैक्टिंग it from the other element, or that is we got the following matrix. So आप देखिए कि इसमें जो चीज़ आपके पास दिख रही है ना, सबसे मिनिमम नंबर आपको जो फाइंड आउट करना था, तो सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है आपको, 10। आप 10 पहले रो में, राइट, यहाँ तक जैसे प्रॉब्लम जो है वो मैक्सिमाइजेशन में से मिनिमाइजेशन में प्रॉब्लम कन्वर्ट हो चुका था। अब आपको रो वाइज कन्वर्जन करने हैं। रो वाइज कन्वर्जन आपको पता ही होगा कि हम लोग कैसे करते थे। आपको रो में सबसे मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है, उस मिनिमम नंबर को जो है वो सब में से जो है वो सब्सट्रैक्ट करना है। यानी कि आप देखिए कि मिनिमम नंबर जो P नंबर का जो रो है उसमें 10 नंबर है, राइट। वो 10 नंबर सब बाकी
बाकी के जो 4 नंबर है ना उसमें से माइनस हो जाएंगे, यानी 20 में से 10 जाएंगे तो 10, फिर 15, फिर 25 और 0, राइट। अब आप देखिए ये पूरा बन चुका है 10, 10, 15, 25, 0। इसी तरीके से दूसरा रो जो है वो P, Q and S, इस तरीके से तीनों जो है वो रो कन्वर्जन्स अभी हो चुका है। अब रो कन्वर्जन्स हो जाने के बाद आपको ये चीज़ चेक करनी है कि आपके पास कोई ऐसा कॉलम है जिसके अंदर 0 नहीं है। तो आप देखिए जो कि मेरे पास जो ऐसा कॉलम, मुझे कॉलम वाइज कन्वर्जन्स करने के लिए मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करनी रहती है कि आपको ऐसा रो एक जो है वो आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर 0 नहीं है। तो मेरे पास फर्स्ट नंबर का कॉलम है उसके अंदर 0 है, सेकेंड नंबर का कॉलम है उसके पास 0 है, 0 लास्ट में है, थर्ड नंबर का कॉलम है उसके अंदर 0 नहीं है, फोर्थ नंबर का कॉलम जो है उसके पास 0 है, फिफ्थ नंबर का जो कॉलम है उसके अंदर 0 है, 2 0 है, राइट। सो अब एक मेरे पास थर्ड नंबर का कॉलम ऐसा है जिसके अंदर 0 नहीं है, राइट। अब उसको कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर आपका नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 जो रहेगा दैट इज द कॉलम कन्वर्जेंस। तो उस कॉलम में आपको फाइंड आउट करना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक नंबर है वो जो सबसे छोटा नंबर है। अब बाकी के सारे वेरिएबल्स में से एक को आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी जो जहाँ पे 15 है वहाँ पे 14 हो जाएंगे, फिर 26 है वहाँ पे 25, 20 है वहाँ पे 19 और 5 है वहाँ पे 4 और 1 की जगह 0। अब ये चीज़ मेरे पास हो चुके हैं, यानी 3 स्टेप हमने यहाँ तक कंप्लीट किए। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास था मैक्सिमाइजेशन का, मैक्सिमाइजेशन में से हमने प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट किया, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करके फिर हमने पहले रो वाइज कन्वर्जन स्टार्ट किया, फिर कॉलम वाइज कन्वर्जन स्टार्ट किया। अब उसके बाद जो स्टेप रहेगा ना वो, अब ये जो जैसे ही कॉलम वाइज इटरेशन हो जाता है तो आपको वहाँ पे 0 एलोकेशन करने की शुरुआत करनी है। अब आप यहाँ पे 0 का एलोकेशन है वो किस तरह से करेंगे, राइट। अब यहाँ पे आपको 0 एलोकेशंस जो है वो किस तरह के करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए कि 0 एलोकेशंस जो है वो कहाँ पे कर सकते हैं आप, यानी आप देखिए जिस कॉलम के अंदर एक ही 0 है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वहाँ पे रहेंगी कि आप वहाँ पे 0 को अलर्ट करें। तो यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। आप देखिए एक मेरे पास कॉलम नंबर फर्स्ट में देखिएगा तो वहाँ पे 0 जो है वो उसको चलो मैंने अलर्ट कर दिया, उसके ऊपर स्क्वायर कर दिया। फिर आप 2 और 3 नंबर का आप कॉलम देखिए तो उसमें से जो 0 है ना वो लास्ट रो के अंदर, दोनों में लास्ट रो में है। तो फिर वहाँ पे आप कोई एक के अंदर एलोकेशन कर सकते हैं। अगर एक में कर दिया तो फिर हमारा रूल्स है कि एक रो के अंदर एक ही 0 एलोकेशन होना चाहिए और एक कॉलम के अंदर एक ही 0 एलोकेशन होना चाहिए, यानी ये एलोकेशन हो नहीं पाएगा। तो आपको क्या चीज़ करनी पड़ेगी, तो हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी कि ये इससे लाइन क्रॉसिंग जो है वो प्रोसीजर वहाँ पे स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब लाइन क्रॉसिंग प्रोसीजर है वो कैसे स्टार्ट होता है, यानी आपको इस तरीके से लाइन को यूज़ करना है जिस तरीके से आपका मैक्सिमम जो है वो 0 कन्वर्ट हो जाए। तो आप देख लीजिए कि मेरा एक जो जैसे लास्ट रो उसके अंदर 2 0 है, राइट, और लास्ट कॉलम है वी वाला कॉलम उसके अंदर 2 0 है। तो उसको पहले मैंने जिस तरीके से मैंने उसको क्रॉस कर दिया, उसके ऊपर लाइन जो है वो क्रॉस कर दी है। एक मेरा लास्ट रो, एक मेरा लास्ट कॉलम। अब आपके पास बचते हैं कॉलम नंबर आर और रो नंबर आर और रो नंबर क्यू, उसके अंदर एक 0 है। तो उस जगह पे जो है वो आपको लाइन क्रॉसिंग जो है वो करना है, राइट। उसके बाद आपके पास कौन से वेरिएबल बचेंगे, आपके पास जो बचने वाले वेरिएबल्स रह जाएंगे तो वो सिर्फ आपके पास 10 10 14 25 5 6 4 7, उसमें से आपको सबसे छोटा नंबर है वो 4 है, राइट। वो 4 को आपको वहाँ पे इंटरसेक्ट, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पे आपको ऐड करना है और बाकी के सारे वेरिएबल्स में से माइनस कर रहा है। तो ये प्रोसीजर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ देखिए आपने, इन लोगों ने एलोकेशन करने की कोशिश की। अब एलोकेशन तो हो नहीं रहा है, तो एलोकेशन हो नहीं रहा है तो फिर आपको क्या चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको इटरेशंस 1 के लिए जाना पड़ेगा, राइट। इटरेशंस 1 के लिए जैसे ही आप जाओगे तो ये इटरेशंस हो जाएगा आपका। मैंने क्या किया कि एक पहला रो मैंने कॉलम कैंसिल किया है,
लास्ट रो लास्ट कॉलम, और फिर मैंने Q और R जो मैंने आपको बताया वही चीज़ जो है मैंने क्रॉस करने की कोशिश की है। और आपके पास अब इसके बाद कौन से वेरिएबल बचेंगे, अब आपके पास जो वेरिएबल बचेंगे वो 10, 10, 14, 25 जो मैंने आपको बताए थे, 5, 6, 4 और 7। इसमें से सबसे छोटा जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, 4 नंबर है, वो सबसे छोटा नंबर है। तो 4 को आपको माइनस करना है कहाँ से, जो आपके अनक्रॉस वेरिएबल है जिसके ऊपर लाइन नहीं घूमी है। तो लाइन नहीं घूमी है वो कौन सा वेरिएबल है, 10, 10, 14, 25 और 5, 6, 4, 7, यानी 4 की जगह 0 हो जाएगा। बाकी के जो नंबर्स आपको -4, आप 4 उसमें से माइनस कर लोगे बाकी के नंबर में से, तो आपको जो आंसर मिलेगा। और 4 आपको प्लस कहाँ पे करने हैं, जहाँ पे इंटरसेक्टिंग हुआ है। तो कहाँ पे इंटरसेक्टिंग हुआ है, ओरिजेंटल और वर्टिकल लाइन का। तो आप देख लीजिए, एक इंटरसेक्टिंग हुआ है क्यू के अंदर, क्यू वाला जो रो है, और वो लास्ट वाले कॉलम के साथ इंटरसेक्ट, जहाँ पे 15 नंबर है वहाँ पे आपको 15 के अंदर 4 ऐड करने पड़ेंगे, वहाँ पे 19 हो जाएंगे। फिर उसके नीचे जहाँ पे 10 है वहाँ पे इंटरसेक्टिंग हुआ है, वहाँ पे 14 हो जाएंगे। और एक लास्ट टी के अंदर जहाँ पे 7 है, 7 और 4 11 हो जाएंगे। तो फिर अब ये जो है वो प्रोसीजर मैंने कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद जो है मुझे एलोकेशंस करना है। तो हर एक रो के अंदर, हर एक रो और हर एक कॉलम के अंदर जो है वो एलोकेशन मुझे करने की कोशिश करनी है। तो जैसे ही मैंने एलोकेशन स्टार्ट किया, तो आपको एलोकेशन वहाँ से स्टार्ट करना है जिसके अंदर सबसे, जिस रो या जिस कॉलम के अंदर एक ही ज़ीरो है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो मैंने ऊपर वाली जगह से स्टार्ट किया था, जो टी है जिसके अंदर एक ज़ीरो है। फिर उसके ऊपर जो, उसके ऊपर की जो रो है एस, एस में 4 में से 4 माइनस किए तो 0 बन गया था, तो मैंने उस ज़ीरो को एलोकेट कर दिया। फिर ऑलरेडी आर में था 0, राइट, यानी आप देख लीजिए ए जो 2, 3 और 4 कॉलम में एक एक ज़ीरो जो है वो एलोकेट हो चुके हैं। और 3 नीचे की आर एस टी रो में एक एक ज़ीरो एलोस्ट। अब क्यू और पी कॉलम बाकी है, और 1 और 5, सॉरी क्यू और पी क्यू जो है वो रो बाकी है, और 1 और 5 जो है वो आपके कॉलम बाकी है। तो क्यू के अंदर जो है वो फर्स्ट के अंदर 0 है, तो उसको मैंने अलर्ट कर दिया। अब फर्स्ट में नहीं कर सकते, और फर्स्ट में पहले हुआ भी नहीं था। और पी के अंदर 5 में मैंने अलर्ट कर दिया, वहाँ भी हुआ नहीं था। तो ये सारे जो है मेरे एक कॉलम और एक रो के अंदर, यानी आप कहीं भी देख लीजिए किसी के अंदर डुप्लीकेशंस नहीं हुआ है। आपके पास 0 होगा तो भी डुप्लीकेशंस होना नहीं चाहिए, राइट। ये जो है वो आपका सॉल्यूशन जो है यहाँ पे आपका बन जाता है। जैसे ये आपका सॉल्यूशन बन जाता है, तो आपको क्या चीज़ करना है, जहाँ पे आपने 0 एलोकेट किया है ना, उस जगह जो है वो ओरिजिनल क्वेश्चंस के अंदर कौन सा नंबर था, ओरिजिनल क्वेश्चंस का जो टेबल था, स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसके अंदर कौन सा नंबर था वो आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर आप देखिए, मैंने पी के अंदर 5 में एलोकेशन किया, तो पी के अंदर 5 में क्या था वो आपको निकालना है। क्यू के अंदर तो आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखने की कोशिश की थी, पी एट वी 5, क्यू एट फर्स्ट, आर एट 4, एस एट 3, टी एट सेकेंड। सो द मैक्सिमम रन पॉसिबिलिटीज विच इज़ दी 232 रन जो है वो मैक्सिमम जो है वो इस प्रकार से जो है, जैसे आपने ये ऑर्डर में बैट्समैन को पोजीशन दी है, उसमें से वो मैक्सिमम जो है वो रन 232 रन जो है वो मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो ये जो था वो आपका मैक्सिमाइजेशंस का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। तो आप एक बार थोड़ा और रिकैप कर लीजिए कि हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए। आपके पास प्रॉब्लम जो है वो क्लियर कट जो है वो इंडिकेशंस नहीं होगा कि ये प्रॉब्लम जो है वो मैक्सिमाइजेशंस का प्रॉब्लम है। आपको क्वेश्चंस में से जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये मैक्सिमाइजेशंस का है या मिनिमाइजेशंस का है। मिनिमाइजेशंस होगा तो शायद कुछ लिखा ही नहीं होगा, पर मैक्सिमाइजेशंस होगा तो फिर वहाँ पे एक चीज़ ऐसे बताई हुई, यू हैव टू आइडेंटिफाई द मैक्सिमाइजेशंस रन और मैक्सिमम रुपीज़ और मैक्सिमम प्रॉफिट, ऐसा कुछ इंडिकेशंस हुआ होगा। यानी वहाँ से आप जो है वो प्रॉब्लम को पिक कर सकते हैं कि दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द मैक्सिमाइजेशंस, राइट। अब यहाँ से जो है वो आपको ये प्रॉब्लम जैसे ख़त्म हुआ, तो आपको पहले मैक्सिमाइजेशंस में से मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करके फिर
आपका रो वाइज कन्वर्जन, फिर आपका कॉलम वाइज कन्वर्जन, फिर उस कॉलम वाले ही टेबल में आपको एलोकेशन करना है। एलोकेशन अगर जीरो, सब रो और सब कॉलम में एक एक जीरो अलर्ट हो जाता है तो फिर वहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। नहीं हो रहा है तो आपको लाइन क्रॉसिंग करना पड़ेगा, इटरेशन 1 में जाना पड़ेगा। उस इटरेशंस के अंदर इस तरीके से आपको लाइन क्रॉस करना है जैसे मिनिमम लाइन को यूज़ करके आप मैक्सिमम जीरो को कन्वर्ट कर सके, राइट। फिर जो बचे हुए वेरिएबल है उसमें से सबसे छोटा वेरिएबल जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको बाकी के सारे वेरिएबल्स में से माइनस करने हैं, और उस जो सबसे छोटा वेरिएबल था उसको जहाँ पे इंटरसेक्टिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट हुई वहाँ पे आपको ऐड करना है। फिर से आपको जीरो को एलोकेशन स्टार्ट करना है और देखना है कि आपको हर कॉलम और हर रो में एक ज़ीरो जो है एलोकेशन करने की कोशिश करनी है। अगर हो जाता है तो फिर आपका प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा, और आपको जहाँ पे ज़ीरो एलोकेशंस हुए हैं वहाँ से उस प्लेस में ओरिजिनली क्वेश्चन वाले जो मैट्रिक्स था उसके अंदर क्या नंबर था उस सबको समराइज करके आपको मैक्सिमम जो है वो आंसर, ऑप्टिमम असाइनमेंट कोर्स जो है वो आपको आंसर करके देना है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको इटरेशन 3, इटरेशन 4, इटरेशन 5 तक जाने की जो है वो ज़रूरत रहती है। नॉर्मली एग्जाम के अंदर, जीटीयू एग्जाम के अंदर नॉर्मली थर्ड इटरेशंस के लिए 7 मार्क्स में आपको मैक्सिमम जाना पॉसिबिलिटीज़ बनती है, उसके बड़ा जो है वो प्रॉब्लम नॉर्मली पूछते नहीं है। और एक एग्जांपल को हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, इसके बाद जो है वो आपका ये सेक्शंस ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इसी चैप्टर के अंदर एक जो है वो पॉइंट रहेगा जो हम लोग बाद में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख लीजिए कि आपके पास एक और ऐसे ही एग्जांपल है जिसमें बैट्समैन और बैट्समैन पोजीशन जो है वो दी गई है। आप देख लीजिए कि ABCDE और आपके पास दिए गए ABCDEF, यानी जो है वो 6 बैट्समैन है और उसके सामने जो है वो आपके पास 5 बैटिंग पोजीशंस हैं। 5 बैटिंग जो है वो पोजीशंस हैं। सेकंड नंबर पे कौन आएगा, थर्ड नंबर पे कौन आएगा, फोर्थ पे, फिफ्थ पे और सिक्स्थ पे। अब यहाँ से आपको प्रॉब्लम है ना वो आपको समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम किस तरीके से बन रहा है। तो आपको जो डेटा दिया गया है वो तो इतना डेटा था, और नीचे वाला आप पढ़िए, यू हैव टू फाइंडिंग द असाइनमेंट मॉडल। हमको एक असाइनमेंट मॉडल जो है फाइंड करना है विच इज़ डिटरमाइन द असाइनमेंट ऑफ द बैट्समैन टू द पोजिशंस विच शुड गिव मैक्सिमम रन इन दी फेवर ऑफ द टीम। ऐसा एक पोजिशंस हमें फाइंड आउट करके देना है जो पोजीशन जो है वो एक मैक्सिमम जो है वो रन हमें बना के दे टीम के लिए। विच बैट्समैन विल नॉट क्वालिफाई फॉर द सिलेक्शन बेस्ड ऑन दी सॉल्यूशन विच इज़ ऑब्टेन। कौन सी पोजीशन है, कौन सा बैट्समैन जो है ये 6 में से जो एक जो है वो क्वालिफाई नहीं करेगा बैटिंग पोजीशंस के लिए। तो ये जो था हमें प्रॉब्लम दिया गया, इसका अब सॉल्यूशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए बेसिक नेचर था ना, बेसिक नेचर प्रॉब्लम का वो अनबैलेंस तरीके का प्रॉब्लम है। आपको 6 बैट्समैन दिए गए और 5 ही बैटिंग पोजीशंस दी गई है, तो एक को तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस कंडीशन में, जो यानी असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका जो पहला कंडीशंस है ना, आपने स्टार्टिंग में जैसे हमने वो इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब मैंने आपको चीज़ ये बताई थी कि असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही सॉल्व किए जा सकते हैं। यानी ये स्क्वायर अभी जिसका ये जो प्रॉब्लम है ना हमारे सामने, उसका जो बेसिक नेचर है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, 6/5 का मैट्रिक्स बन रहा है। यानी या तो फिर 5/5 का होना चाहिए या तो फिर 6/6 का होना चाहिए। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको 6/6 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। अब एक चीज़ क्या करनी पड़ेगी, एक जो कॉलम है, क्योंकि कॉलम कम पड़ रही है ना, कॉलम जो है वो एक ऐड करनी पड़ेगी। तो एक डमी कॉलम जो है वो मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मैंने जो है वो एक डमी कॉलम जो है वो ऐड कर दी है, राइट। अब यहाँ पे चीज़ क्या हो जाएगी कि एक तरीके से मुझे जो है वो प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन में से मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने जाना पड़ेगा, राइट। अब कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए मैक्सिमाइजेशन में से मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो प्रोसीजर था वो प्रोसीजर क्या था, आपको मैट्रिक्स में से सबसे बड़ा नंबर है जो आपको फाइंड आउट करके निकालना है, राइट। आपको सबसे बड़ा नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो आप जैसे ही फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, राइट। तो यहाँ पे आई थिंक मुझे सेम
मैट्रिक्स सेम ही है, सिर्फ अनबैलेंस कंडीशन आपको इसी प्रॉब्लम में करके दी है। तो 60 नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर वो जो दिख रहा है। तो पहले आपको प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशंस में से मिनिमाइजेशंस में कन्वर्ट करना है, यानी सब नंबर को 60 में से माइनस करना है, राइट। तो अब आपके सामने 60 में से 0 हो गए, जो D1 डमी ऐड किया था 60 माइनस 0 विच इज़ दी 60, राइट। तो वो 60 बन जाएगा पूरा एक रो। अब आपको सेम प्रॉब्लम को क्या चीज़ करनी पड़ेगी, सेम प्रॉब्लम को रो वाइज कन्वर्ट करने जाना पड़ेगा। अब रो वाइज देखोगे तो आपको देखना पड़ेगा, तो मेरे पास ABCDE ऐसे 6 रो है, 6 रो में सबसे छोटा नंबर है, तो पहले रो के अंदर मेरे पास जो सबसे छोटा नंबर है वो 10 है, तो 10 को बाकी सारे नंबर में से आपको माइनस करना पड़ेगा। इसी तरीके से सारे 6 रो को आपको रो वाइज कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो जैसे आप रो वाइज कन्वर्जन करने की कोशिश करोगे तो ये आपका रो वाइज कन्वर्जन हो चुका है। अब आपको फोकस करना पड़ेगा कि कॉलम वाइज कन्वर्जन करना है। तो कॉलम वाइज कन्वर्जन किस तरीके से होगा, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस कॉलम के अंदर 0 नहीं है। तो कॉलम नंबर 1 के अंदर 0 है, 2 के अंदर है, 3 के अंदर नहीं है, 4 के अंदर है, 5 के अंदर है, 6 के अंदर नहीं है, या 3 और 6 ऐसे कॉलम हमें मिले हैं जिसके अंदर जो है वो 0 नहीं है। तो उसका कॉलम वाइज कन्वर्जन होगा। उस कॉलम में सबसे छोटा वेरिएबल आपको चूज़ करना है और उसको बाकी के सारे वेरिएबल्स में से माइनस करना है। तो ये चीज़ आप करके जाओगे तो यहाँ पे भी आपका कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 6 जो है वो कॉलम वाइज कन्वर्जन हो जाएगा। फिर आपको उसको 0 अलॉटमेंट करने की कोशिश करनी है। एक रो और एक कॉलम के अंदर आपको 0 असाइन करने की कोशिश की है, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, जिस रो के अंदर एक ही 0 हो वहाँ से आपको स्टार्ट करने की कोशिश करनी है। तो पहले ऐसे आइडेंटिफाई करिए कि ऐसे कौन से कॉलम है जिसके अंदर एक ही 0 है। तो आप देखिए कि पहला कॉलम जिसके अंदर एक 0 है तो मैंने वहाँ पे यूज़ कर लिया। अब मेरा कॉलम नंबर 1 में असाइन नहीं हो सकता और रो नंबर 2 में असाइन नहीं हो सकता। फिर मुझे ऐसा कॉलम ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर एक ही 0 है। तो फिर ऐसा एक कॉलम है जिसके अंदर एक ही 0 हो, तो वो कॉलम है मेरा कॉलम नंबर 3 जिसके अंदर एक 0 है। तो वो 0 को मैंने यूटिलाइज कर दिया। अब मेरा क्या चीज़ हो गया कि रो नंबर 5 मेरा यूटिलाइज हो चुका है और कॉलम नंबर 3 यूटिलाइज हो चुका है। फिर उसके बाद मेरा बचेगा कॉलम नंबर 4 जिसके अंदर C रो के अंदर एक 0 है। तो अभी तक मैंने कौन से रो यूज़ कर लिए हैं, D यूज़ कर लिया, E यूज़ कर लिया और अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ C, यानी ये C। 3 कॉलम यूज़ हो चुके हैं। अब मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पे चीज़ हो सकती है, राइट। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एलोकेशन जो है मेरे पास कॉलम मेरी बची है जो कॉलम बची है मेरी वो मैंने अब तक यूज़ की है B, E और C। तो E के अंदर तो मैंने यूटिलाइज एक कर लिया था, वो दोनों 0 जो है वो एक ही कॉलम के अंदर आ रहे, तो फिर यहाँ पे पॉसिबल हो सकता नहीं है। यानी ये जो चीज़ बनेगी यहाँ पे आपको इटरेशंस 1 के लिए जाना पड़ेगा। B के अंदर जो था, राइट, मैंने B कॉलम यूज़ किया था। आप अपने बुक में करते जाइए। B को मैंने 0 असाइन किया था जिसके अंदर एक ही 0 है। फिर मैंने असाइन किया जिसके अंदर एक ही 0 हो, उसमें मैंने लिया था कॉलम नंबर 3 वाला E वाला रो, वो यूटिलाइज़ कर दिया। फिर मैंने 4 यूटिलाइज़ कर दिया। फिर अब मेरा F यानी लास्ट वाला जो रो है उसके अंदर जो सबसे लास्ट वाला 0 था वो असाइन कर दिया। तो मेरा अभी कितने कंप्लीट हो चुके हैं, मेरा B, C, E, F यानी A, D बचे हैं। तो A में जो 0 है वो कहाँ पे है, A वाले रो में, तो वो 5th नंबर के कॉलम में। तो 5th नंबर वाला कॉलम अभी तक यूज़ नहीं हुआ है तो मैंने वो यूज़ कर लिया। अब मेरे पास बचेगा D। तो जो D में 0 है वो कहाँ पे है, तो कि लास्ट वाले 6th नंबर के कॉलम के अंदर है, वो उसमें भी मैंने एक भी 0 यूज़ नहीं किया। तो सारे ये जो है वो कॉलम वाइज कन्वर्जन्स वाला जो हमें मैट्रिक्स मिला था, उसी मैट्रिक्स में सारे 0 जो है वो अलर्ट हो चुके हैं। अब
वो जहाँ पे हमने 0 को एलोकेशंस किया उस चीज़ को आपको मार्क कर देना है। बी में मैंने कहाँ पे अलॉटमेंट किया, 3 में। फिर ए में मैंने कहाँ पे किया, 5th में। बी में 3rd में। सी में 5th में, 6th में। डी में, डी के अंदर डमी के अंदर। ई के अंदर मेरा जो था वो मैंने किया 5 के अंदर। एफ में मैंने किया 4 के अंदर। ओरिजिनली उस जगह पे जो क्वेश्चंस वाला जो मैट्रिक्स था उसमें वो कौन से नंबर थे उसको आइडेंटिफाई करके उसको प्लस करना है, एडिशन करना है उसका। वो जो रहेगा वो आपका ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगा। वो ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है दैट इज़ दी 263 रन्स जो है वो मैक्सिमम इस ऑर्डर्स के पोजीशन से जो है वो बन सकते हैं। तो ये जो है आपका मैक्सिमाइजेशन वाला ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गया। ये इसके अंदर मैंने एक प्रॉब्लम जो आज हमने प्रॉब्लम की, एक जो था वो मैक्सिमाइजेशन वाला नॉर्मल था जिसको मिनिमाइज करके सॉल्व किया। एक जो था वो मैक्सिमाइजेशन के साथ अनबैलेंस था, तो जिसको पहले बैलेंस किया उसके बाद उसको मिनिमाइजेशन में किया, उसके बाद रो वाइज कॉलम वाइज कन्वर्जन इटरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी और वहाँ से मेरा सॉल्यूशंस हो गया। अगर ये मेथड, दोनों मेथड के अंदर किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी समझ में नहीं आया है तो फिर आप मुझे यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर जो है वो मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो है वो आपका मैक्सिमाइजेशंस वाला पोर्शंस जो है वो एक मेथड जो है वो कंप्लीट हो जा रही है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो मेरा एक ट्रैवलिंग सेल्समैन जो वाली एक मेथड है, ये चैप्टर की लास्ट मेथड है, वो हम कल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फिर असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं उसका असाइनमेंट आपको दे दूंगा, राइट। यहाँ पे आपका जो है वो मैक्सिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो रहा है। किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे आप लेक्चर देख लीजिए उसके बाद अपना एनरोलमेंट नंबर है वो कमेंट सेक्शंस के अंदर डाल दीजिए, विच इज़ काउंटेड एज योर ऑनलाइन अटेंडेंस। सो थैंक यू।